جڑاوالا میں گیس کی قلت کے بعد اوور بلنگ شہریوں کے لیے عذاب بن گئی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ گیس نہ ملنے کے باوجود بھاری بل دینے پر مجبور ہیں۔ رپورٹ کریں گے مزمل رانا۔ نگران حکومت نے عوام پر سوئی گیس کی قیمتوں میں اضافہ کر کے ان سے جینے کا حق بھی چھین لیا۔ مہنگائی بے روزگاری کے ہاتھوں پہلے ہی غریب عوام کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ چکے تھے، اب سوئی گیس کے بلوں میں مزید ٹیکس لگا کر حکومت نے عوام کو زندہ درگور کر دیا ہے۔ 44,000 روپیہ بل آ گیا، کتوں جمع کروانا؟ کل بجلی کا بل 25,000 میں جمع کروا گیا۔ کیسا پاکستان ہے؟ کی کرن ڈے ہوئے نے؟ پورا بھی توجہ نہیں ہے انہاں دی اس عوام وال۔ گیس دے بل اننے آ گئے آ کہ ساڈے کو کھان جو کہ پیسے نہیں دے جی اسی باہر جا کے گھیو چینی دال اپنا پورا کر سکیے۔ سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ جس کا دورانیہ 16 گھنٹے ہوتا ہے، مگر حکومت نے گیس کے بلوں میں اضافہ کر کے ٹیکسوں کا بوجھ ڈال کر ہماری کمر توڑ کر رکھ دی۔ حکومت غریب عوام پر لگائے گئے ٹیکسوں پر نظر ثانی کر کے عوام کو ریلیف دیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ مزمل رانا، سچ نیوز، جڑاوالا۔ ہنگو میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ طول پکڑ گیا ہے۔ شہری علاقوں میں 18 گھنٹے جبکہ دیہی علاقوں میں 20 گھنٹے تک بجلی غائب رہتی ہے۔ طویل لوڈ شیڈنگ نے عوام کی زندگی اجیرن بنا دی۔ اسی حوالے سے رپورٹ کریں گے عصمت اللہ۔ ہنگو میں بجلی کی غیر اعلانیہ طویل ظالمانہ لوڈ شیڈنگ نے عوام کا جینا محال کر دیا۔ محکمہ وابڈہ کی جانب سے شہری علاقوں میں 18 گھنٹے جبکہ دیہاتی علاقوں میں 20 گھنٹوں تک بجلی کی غیر اعلانیہ ظالمانہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے بجلی سے وابستہ تمام کاروبار ٹپ ہو کر رہ گئے ہیں۔ تقریباً 20 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی ہے اور یہاں پر گھروں میں بھی مسائل ہوتے ہیں، تقریباً پانی نہیں آتا ہے، مشین کے لیے بھی بجلی کی ضرورت ہے اور یہاں پر جو دکاندار ہیں ان کے لیے بجلی کا بہت مسائل ہے۔ تقریباً 20 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی ہے۔ ہر مہینے باری برکم بل ادا کرنے کے باوجود بجلی کی آنکھ مچولی اور کم وولٹیج کے باعث نہ صرف گھروں میں عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے بلکہ بازاروں میں بھی بجلی کی ظالمانہ لوڈ شیڈنگ سے کاروباری مراکز کافی حد تک متاثر ہو کر دکاندار سارا دن بجلی آنے کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ 24 گھنٹے میں 20 گھنٹے بھی نہیں ہوتا ہے اور 2 گھنٹے یا 1.5 گھنٹے آتا ہے، وہ ایسے وقت پہ آتا ہے کہ کسی قوم پہ نہیں آتا ہے، نہ بندہ نماز اور تلاوت کر سکتا ہے، نہ دنیا کی کام کر سکتا ہے۔ ایسے وقت پہ وہ بجلی آتا ہے کہ نہ کوئی مشین چلا سکتا ہے، نہ کوئی اور کام کر سکتا ہے، جو بالکل بجلی ہے۔ اور بلیں ایسے آتے ہیں کہ 10,000 5,000 سے اوپر آ جاتا ہے۔ ہنگو میں بجلی کی غیر اعلانیہ طویل ظالمانہ لوڈ شیڈنگ غریب عوام کے ساتھ سراسر ظلم اور ناانصافی ہے۔ ہنگو کے غریب عوام نے حکومت سے بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین محمد مہران کے ساتھ عصمت اللہ، سچ نیوز، ضلع ہنگو۔ محکمہ شاہراہات اپنی ذمہ داریوں سے غافل۔ حافظ آباد کی مین شاہراہ علی پور روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے، جگہ جگہ گڑھے پڑ گئے، گاڑیاں کھٹارا ہونے لگی، منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہونے لگا، مسافر رل گئے۔ تفصیلات امیر حمزہ بٹ کی رپورٹ میں۔ حافظ آباد کی مین شاہراہ علی پر روڈ جو تقریباً عرصہ 30 سال سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ یہ روڈ حافظ آباد کو 3 اضلاع سے ملواتی ہے، جس میں گجرانوالہ، وزیر آباد، گجرات اور اس کے ساتھ اسلام آباد جانے کے لیے مختصر راستہ بھی ہے۔ علی پر روڈ کے باسیوں کا کہنا ہے کہ ہر ایک دور میں ہر سیاستدان نے ہم سے وعدہ کیا لیکن وعدہ وفا نہ کیا۔ 5 سال کے اس روڈ کا کوئی فرسانے حال نہیں۔ ساڈے ماں پیو بھی ہن تک یہی دستے رہے نے کہ عرصہ 30 سال تو یہ سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے گی۔ حکومت وقت تک یہ اپیل کرنے ہیں کہ اس روڈ کا کوئی پروجیکٹ جڑا کمپلیٹ کیتا جائے۔ علی پور روڈ دی حالت عرصہ 30 سال تو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جگہ جگہ تے ٹوئے ٹبے، کئی حکومتاں آئیاں تے کئی حکومتاں گئیاں، اس روڈ دی اج تک سنوائی نہیں ہو سکی۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ جب بارش ہو جائے تو ہمیں اسکول جانے کے لیے بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ بارش کی وجہ سے پانی اتنا کھڑا ہو جاتا ہے نہ تو ہم گزر سکتے ہیں، جس سے اسکول سے لیٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ حافظ آباد کا علی پر روڈ ہے جس سے ہمیشہ کے لیے ستیلی ماں جیسا سلوک کیا گیا ہے۔ حافظ آباد میں اس روڈ کو لے کر شہری انتہائی پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ شہریوں کا نئی بننے والی حکومت سے مطالبہ ہے کہ اس روڈ کی تعمیر و نو کا کام جلد شروع کروایا جائے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ امین حمزہ بٹ، سچ ٹی وی، حافظ آباد۔ اوکاڑا فیصل آباد روڈ پر سیوریج سسٹم ناکارہ ہو گیا ہے، سڑک تالاب کا منظر پیش کر رہی ہے، تعفن اٹھنے سے عوام کا سانس لینا تک محال ہو گیا ہے۔ اسی پر رپورٹ کریں گے حبیب اللہ چراہی۔ اوکاڑا فیصل آباد روڈ اوور ہیڈ برج کے نیچے 1 سال سے زائد عرصہ سے سیوریج سسٹم ناکارہ ہو چکا۔ روڈ سے گزرنے والے لوگوں کے کپڑوں پر گندے پانی کے چھینٹے روزانہ کا معمول بن گئے۔ کاروباری دکاندار حضرات علیحدہ پریشان، مگر ضلعی گورنمنٹ ڈینگی مکاؤ مہم کا آغاز تو کرنے جا رہی ہے لیکن ایک عرصہ سے اس گندے پانی کے جوڑ کا حل نہ نکل سکا۔ پانی دے متعلق جی بار بار اسی بلدیہ چ بھی گئے ہیں، اعلیٰ کام نوں بھی ہر چیز کا پتہ ہے، یہ ساری دکانداریاں بھی خراب ہوندیاں نے، یہ پانی کا کوئی حل نہیں کر رہا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کئی بار بلدیہ افسران کو درخواستیں گزاری لیکن سب بیکار۔ عوام جتنی مرضی تنگ ہو پر ضلعی گورنمنٹ خاموش تماشائی کا رول ادا کر رہی ہے۔
चकवाल की भवन रोड कई साल गुजरने के बावजूद ताहाल मुकम्मल ना हो सकी। हादसात मामूल बन गए और कई कीमती जानें जाया हो चुकी हैं। रिपोर्ट देखिए ब्यूरो चीफ राजा साकिब अब्बास की। चकवाल की आम शाहरा बोन रोड कई साल गुजरने के बावजूद ताहाल मुकम्मल ना हो सकी, लेकिन आए रोज ट्रैफिक के हादसात की वजह से कई हंसते बसते घर उजड़ चुके हैं। पीटीआई के दौरे हुकूमत में सरगोदा रोड पर चकवाल से भौन 13 किलोमीटर मंसूबा का इफ्तिताह तो किया गया, जो 1 साल में मुकम्मल होना था, लेकिन ताहाल इल्तवा का शिकार है। भौन रोड की जी तामीर शुरू हुई है, पिछले गालबन 2021 जुलाई में शुरू की गई है, लेकिन पता नहीं नामालूम वजूहात की वजह तो यह काम नामुकम्मल रह गया और इसकी मशीनरी जी ठेकेदार दी है उस साइड तक खलोती भी है और बिल्कुल ऐसी जगह तक खलोती भी है कि जितना आए दिन हादसात होते रहते हैं। मंसूबा पर काम सुस्त रवि का शिकार और ठेकेदार की मशीनरी जो सड़क के तरफ खड़ी है उसके साथ गाड़ियां टकराने से कई कीमती जानें जाया हो चुकी हैं और बहुत से घर उजड़ चुके हैं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि कीमती इंसानी जानों के ज़िया को रोकने के लिए फौरी तौर पर इस मंसूबे पर काम मुकम्मल कराया जाए। कैमरा टीम के साथ रहे साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ सच न्यूज़ चकवाल। इंतजामिया की गफलत, लिया का शहीद मुश्ताक अहमद पार्क कचरा कुंडी में तब्दील हो गया। पार्क की खूबसूरती मांद पड़ गई है, जबकि झूले भी टूट फूट गए हैं। शहरियों ने तफरीह पार्क का रुख ही करना छोड़ दिया है। मजीद जानते हैं जहूर दुरानी की इस रिपोर्ट में। यह है लिया के दिल खत्म नबूवत चौक के पास वाक़ शहीद मुश्ताक अहमद पार्क, जो कभी फैमिली पार्क कहलाया जाता था। इस पार्क की रौनकें और होने वाले म्यूजिकल इवेंट पूरे पंजाब में मशहूर थे, मगर अब इस पार्क की हालत जार किसी उजड़े दीवार से कम नहीं। बेंच टूट चुके तो गंदगी के ढेर, टूटती दीवारें, सूखे दरख्त और हर तरफ उजाड़ इस पार्क की हालत जार पर नोआ कुना है। यहाँ सफाई भी बिल्कुल नहीं है, तो बस आते हैं चले जाते हैं, ऐसे कोई यहाँ देखने वाला नहीं है, सफाई का ख्याल रखने वाला। बाकी यहाँ अमला तो नजर आता नहीं है कोई यहाँ सफाई वाला। डिप्टी कमिश्नर लिया से रब्ता करने पर उनका कहना था, मैं खुद विजिट करूंगा और पार्क की हालत बेहतर बनाई जाएगी। कैमरामैन जुबैर लश्कानी के साथ जहूर दुरानी, सच न्यूज़ लिया। चीचा वतनी में सीवरेज का नाकिस निजाम अवाम के लिए वबाल जान बन गया। गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट देखिए महराजर की। चीचावतनी के मोहल्ला मकसूद टाउन, मोहल्ला बाबू टाउन और मेन माल मंडी रोड पर सीवरेज का गंदा पानी तालाब का मंजर पेश कर रहा है, जिसकी वजह से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रही हैं। ये मकसूद टाउन दी मेरी रिहायश है ते की कहंदे हर टाइम इत्थे पानी खड़ा रहिंदा वा। सही है, इत्थे एक मिनट नहीं पानी सुकदा। सामने मस्जिद आ, मस्जिद नमाज पढ़न नहीं जा सकते। इन्नी ज़्यादा परेशानी है कि कोई हिसाब नहीं हैगा। साडा जिहड़ा ना ये दरीना मामला पानी वाला सीवरेज वाला ये वबाले जान बनया होया जी। इहदी वजह नाल काफ़ी सारियां बीमारियां फैल रहीआं वा, मच्छर आ, होर इस तो इलावा बहुत सारियां बीमारियां वा। सामने मस्जिद आ, घरों निकल के बच्चे मस्जिद नहीं जा सकते, असीं मस्जिद नहीं जा सके। शहरियों का कहना था कि हम अरसा दराज से सीवरेज के गंदे पानी से मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। बारहा इंतजामिया की तवज्जो दिलाई गई है, मगर इंतजामिया के अहलकार सिर्फ फोटो सेशन करके चले जाते हैं और बल्दिया चीचावतनी खामोश तमाशाई बनी हुई है। हमारा कोई पुरसानी हाल ना है। हमारी डिप्टी कमिश्नर साहिवाल, असिस्टेंट कमिश्नर चीचावतनी, टीएमओ चीचावतनी से अपील है कि सीवरेज के पानी का निजाम बेहतर करवाया जाए और मुकम्मल सफाई करवाई जाए, ताकि हम मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से बच सकें। कैमरामैन शहजाद महमूद के साथ मारजर, तहसील रिपोर्टर, सच न्यूज़, चीचावतनी। टंडोजाम के करीब कायम टोल प्लाजा ने इंतजामिया को कोर्ट के अहकामात को हवा में उड़ा दिया है। इंतजामिया सरकारी रेट से कई ज्यादा टोल टैक्स वसूल करने में मसरूफ है। रिपोर्ट करेंगे औरंगजेब भुट्टो। यह है हैदराबाद मीरपुखास रोड पर टंडोजाम के करीब कायम टोल, जहां से टंडोजाम फकत 10 किलोमीटर के फासले पर है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक टंडोजाम तक रोड इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों से 10 रुपए टोल वसूल किया जाएगा, मगर टोल इंतजामिया ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को हवा में उड़ा दिया है और टंडोजाम के रिहायशियों को अपनी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन ना करवाने के बहाने से 10 रुपए के बजाय मीरपुखास तक 95 रुपए टोल वसूल किया जा रहा है, जिस वजह से टोल पर झगड़े और रोड ब्लॉक होना रोज का मामूल बन चुका है और हर वक्त गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहती हैं। शहरियों का कहना है कि टोल इंतजामिया टंडोजाम की एड्रेस के बने हुए हमारे कौमी शनाख्ती कार्ड भी सबूत के तौर पर नहीं मान रहे। मेरा टंडोजाम का कार्ड है, असल मेरा कार्ड है, बोला तो मैं 15 रुपए लेंगे, हम देते थे। अब मेरी गाड़ी का टोकन भी वो था पहले ख़त्म करा इन्होंने, फिर मैं इन्होंने क्या किया कि भाई अपनी कागज गाड़ी के कागज़ दो, मैंने ला के दिए। 2 महीने हो गए, मुझे कार्ड बना रहे हो, मुझे ये गालियाँ देते हैं, ये बदतमीजी करते हैं हमसे। सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है टंडोजाम के लिए 10 रुपये का, पर यहाँ आए दिन कोई परेशानी, कोई शनाख्ती कार्ड का मसला आता है, कभी कोई मसला आता है, लोगों को परेशान किया जाता है, फैमिली के साथ गाल गन करते हैं।
और समझ लें हम इधर टैक्स नहीं देते, हम बता देते हैं। दूसरी जानब टंडोजाम टोल इंतजामिया का कहना है कि टंडोजाम के शहरी पहले अपनी गाड़ी अपने नाम रजिस्टर करवाएं, अपनी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन कागजात, अपने नाम का टंडोजाम का बिजली का बिल और कौमी शनाख्ती कार्ड की कॉपी टोल ऑफिस में जमा करवा कर टोकन वसूल करें, फिर ही टोल में रियायत दी जाएगी। टोकन के लिए रिक्वायरमेंट ये है कि NIC टंडोजाम का होना चाहिए, यूटिलिटी बिल होना चाहिए टंडोजाम का और गाड़ी उनके नाम पे होना, ये रिक्वायरमेंट है। नहीं, उनकी एक SOPs है, रूल है भाई, एक्साइज की है ना, तो वही मैं आपको कह रहा हूँ ना। तो वो जब उन्होंने क्लियर एक हमें गाइडलाइन दी हुई है कि जी आपकी गाड़ी तो तब कहलाएगी जब आपके नाम पे होगी ना, आपके नाम पे ही नहीं है तो आपकी गाड़ी कैसे कहलाएगी। टंडोजाम में ज़रा यूनिवर्सिटी समेत मुख्तलिफ सूबाई और वफाकी इदारों के मरकजी दफातर होने की वजह से हैदराबाद व गिरदोनवा के दूसरे शहरों से रोजाना सैकड़ों लोग अपनी गाड़ियों में सफर करते हैं, जिनसे मीर बुखास तक का 95 रुपए मुकम्मल टोल वसूल किया जा रहा है। टंडोजाम के शहरियों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस से मुतालबा किया है कि सुप्रीम कोर्ट के किए हुए फैसले पर अमल दरामद ना होने का फिलफोर सो मोटो नोटिस लें और इस पर जो है अब अपने फैसले पर अमल दरामद कराएं ताकि ये झगड़े और मामलों जो है वो ख़त्म हो सके। कैमरा टीम कैमरा औरंगजेब भुट्टो, सच TV टंडोजाम। टोबा टेक सिंह के DHQ अस्पताल में कूड़ा क्रिकेट के ढेर लग गए। गंदगी के ढेर वबाई अमराज को दावत देने लगे। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं सुल्तान सिद्धू। इंसानी सेहत और माहौल की सफाई और सुथराई का आपस में गहरा ताल्लुक है। अगर माहौल गंदा होगा तो बिलाशुबा अस्पताल मरीजों से भरना शुरू हो जाएंगे। ये मनाजर हैं टोबा टेक सिंह के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के, जहां हर रोज सैकड़ों मरीज लाए जाते हैं। टोबा टेक सिंह शहर जहां जगह जगह गंदगी और कूड़ा क्रिकेट के ढेर हैं, वहीं अस्पताल से पैदा होने वाला खतरनाक कूड़ा भी सरेआम फेंका जाता है। सरेआम फेंका जाने वाला खतरनाक कूड़ा क्रिकेट से उठने वाले तफन से शहरी परेशान है। हुकूमत पंजाब ने अस्पतालों के फुजले और कचरे को ज़ाया करने के लिए लाखों रुपए के फंड मुख्तस किए हैं ताकि साइंसी बुनियादों पर अस्पताल से कचरा वगैरह तलब किया जा सके। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल से निकलने वाले कूड़ा करकट को मुनासिब तरीके से ठिकाने न लगाने के बायस खतरनाक अमराज में रोज ब रोज इजाफा हो रहा है। तो हमें बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है कि इधर इतनी गंदी स्मेल आती है और ज़ाहिर बीमारियां फैलने का भी अंदेशा था। शहरी और समाजी तंजीमों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए जो कूड़ा डालकर बीमारियां फैला रहे हैं। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक सिंह। निगरान हुकूमत की जानिब से महंगाई की चक्की में पिसे आवाम पर एक और बिजली बम गिराने की तैयारी की जाने लगी। बिजली के फी यूनिट कीमत में 7 रुपए 13 पैसे इजाफे की समरी भेज दी गई है। रिपोर्ट करेंगे इसी हवाले से टंडू अलायार से सैयद अतीकुर रहमान। निगरान हुकूमत भी आवाम को रिलीफ ना दे सकी। निगरान हुकूमत ने महंगाई की चक्की में पिसी आवाम पर एक और बम गिराने की तैयारियां शुरू कर दी। बिजली फी यूनिट कीमत में 7 रुपए 13 पैसे इजाफे की दरख्वास्त नेपरा को जमा करवा दी। पहले ही बिजली की महंगाई की शरह बहुत ज्यादा थी। हमने सोचा कि निगरान हुकूमत आएगी, कुछ रिलीफ देगी आवाम को, मगर इसने तो आवाम को रिलीफ देने के बजाय मजीद बिजली महंगी कर हम पर एक और मजीद बोर्ड डाल दिया गया। नेपरा को जो दरख्वास्त दी गई वो वापसी कैंसिल होनी चाहिए। अगर कैंसिल नहीं होगी तो फिर तो ये समझ लो लोग खुदकुशी करेंगे, अपने बच्चों को खुद मारेंगे और खुद मरेंगे। टंडो अलायार के शहरियों ने निगरान हुकूमत और आने वाली हुकूमत से मुतालबा किया है कि खुदारा इस आवाम पर महंगाई के बम गिराना बंद करें और आवाम की मुश्किलात को कम करें और गरीब आवाम को रिलीफ फराम करें। कैमरामैन सैयद अताउर रहमान के साथ सैयद अतीकुर रहमान, ब्यूरो चीफ, सच TV न्यूज़, टंडो अलायार। किसानों की मुश्किलात कम होने के बजाय बढ़ने लगी। पीर जगी पहाड़पुर लैया में मुनाफाखोर खाद के मनमाने दाम वसूल करने लगे। किसान महंगे दामों खाद खरीदने पर मजबूर हैं। कोई पूछने वाला नहीं है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। जहां एक तरफ आए रोज बढ़ती हुई महंगाई ने हर शख्स को परेशान कर रखा है, वहीं अचानक खाद की कीमत में 1000 रुपए फी बोरी और एमोनियम नाइट्रेट खाद की कीमत में 800 रुपए फी बोरी इजाफा कर दिया गया। दूसरी तरफ खाद डीलर्स की मनमानियां भी अपने उरूज पर पहुंच चुकी हैं, जबकि इंतजामिया का कहीं दूर दूर तक नामो निशान नजर नहीं आता। रेट हुकूमत ने जी गवारा आई पियो 5000 रुपये मिलती पे, जो यूरिया आई पियो 6000 रुपये मिलती पे, 1000 रुपये रेट ने बढ़ा दी जाने वजह तो किसान बहुत परेशान हैं। अगर गवर्नमेंट ने बर वक्त खादों की कीमतों को कंट्रोल न किया तो आने वाले वक्त में न सिर्फ किसान मुआशी तौर पर कमजोर होगा, बल्कि उसके मुल्क की मईशत पर भी मनफी असरात मुरतब होंगे। मुल्क भर में महंगाई पर काबू नहीं पाया जा सका है। आम बाजारों और सस्ते बाजारों समेत यूटिलिटी स्टोर्स पर भी महंगाई का तूफान आया हुआ है। अवाम बजट तितर बितर होने पर परेशान है। सब्जियों, फलों और जरूरती अशिया समेत आटा, चावल और चीनी की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी।
महंगाई आम बाजारों से दबे पांव सस्ते और इतवार बाजारों में भी घुस आई। क्या सब्जियां, क्या फल और क्या अशियाए जरूरिया कुछ भी सस्ता न रहा। अवाम घरों को मायूस लौटने लगे और तो और अवाम को रिलीफ देने के नाम पर कायम होने वाले यूटिलिटी स्टोर्स भी शहरियों को रिलीफ देने में नाकाम हुए। आटा, चीनी और चावल के यूटिलिटी स्टोर्स पर आम मार्केट से भी ज्यादा हुए दाम। 20 किलो आटे का थैला 2,840 रुपए में, जबकि आम मार्केट में 20 किलो आटा 2,792 रुपए में मिल रहा है। इसी तरह चीनी आम मार्केट की निस्बत 90 रुपए महंगी बिकने लगी तो सफेद चने के भाव भी फी किलो 13 रुपए ज्यादा है। चावल के रेट भी कुछ कम नहीं। जहलम में चिकन ने अपनी 6 सेंचुरियां मुकम्मल कर ली। बढ़ती महंगाई ने अवाम का जीना दोबर कर दिया। रिपोर्ट देखिए बाबर हुसैन की। एक दफ़ा फिर मुर्गी के गोश्त की ऊंची उड़ान जारी है। मुर्गी का गोश्त अपनी 6 सेंचुरियां मुकम्मल कर चुका है, जो इस वक्त जेल में 640 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है, जिससे खरीदार की सकत खत्म हो रही है। आज मुर्गी का रेट 640 रुपये है। माल बीमार हो गया था, कुछ महंगाई की वजह से, ज़्यादा होने की वजह से काम बहुत कम हो गया। जो लोग 1 किलो लेने आते थे वो भी आधा किलो लेके जा रहे हैं। रेट तो यानी कि ओवरऑल महंगाई हो चुकी है हर तरफ, लेकिन उम्मीद तो कोई नहीं है नई गवर्नमेंट से कि वो कुछ रिलीफ देगी आवाम को। मुश्किल ही लगता है। बीफ और मटन की कीमत आगे ही ज़्यादा है। जो मुर्गी खाते थे अब वो भी कभी कभी मुर्गी का गोश्त खाएंगे। मुर्गी का गोश्त अपनी 6 सेंचुरियां मुकम्मल कर चुका है। नई हुकूमत से ये उम्मीद लगा के शहरी बैठे हैं कि शायद उनको रिलीफ मिले और मुर्गी का गोश्त भी सस्ता हो। कैमरामैन सनानी के साथ बाबर हुसैन, ब्यूरो चीफ सच न्यूज़, जहलम। महंगाई से सताए अवाम की मुश्किलात कम न हो सकी। सियालकोट में जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। मुनाफिखोर शहरियों को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे वहीद अहमद। सियालकोट महंगाई ने पंजे गाड़ लिए। बढ़ती हुई महंगाई में जान बचाने वाली अदलियात भी महंगी हो चुकी हैं। शुगर, ब्लड प्रेशर और इंसुलिन समेत तमाम अदलियात महंगी हो गई हैं, जो मरीजों और दिहाड़ीदार तबका की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी हैं। मेडिसिन लेने आए हैं जो पिछले हफ्ते 400 450 की थी, वो इस टाइम 500 600 700 की हो रही है। जैसे दूसरी चीज़ें महंगी हैं वैसे मेडिसिन भी अभी काफ़ी ज़्यादा महंगी हो चुकी है। दुकानदार का कहना है पहले मेडिसिन शार्ट होती है और जब मार्केट में आती है तो इसकी कीमत बढ़ गई होती है। हुकूमत की जानिब से लगाए गए टैक्स की वजह से अदलियात की कीमतें बढ़ती हैं। क्लैरिसिड है, गैल्वसमेट है, रिथमो है। अभी एक आइटम आई है रिथमो, डबल हो गई है रेट उसके। 100-150 रुपया तो आम बात है कोई भी आइटम का बढ़ जाना, और गाहक परेशान है। पहले शार्ट होती है, बाद में रेट बढ़ जाता है। अदलियात के साथ साथ बच्चों के दूध की कीमतों में भी बेपनाह इजाफा कर दिया गया है। शहरियों का कहना है हमारी आला हुकाम से अपील है कि जान बचाने वाली अदलियात की कीमतें कम की जाए। वहीद अहमद, सच टीवी, सियालकोट। महंगाई का सुनामी, परेशानी ही परेशानी। रायगढ़ में अद्वियात महंगी होने के सबब शहरियों को इलाज मुआवजे में मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने हुकूमत से अद्वियात की कीमतें कम करने का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं इलियास। रायगढ़ शहर और नवाही इलाकों में इंसुलिन नायाब हो चुकी है। इंसुलिन समेत जान बचाने वाली अदवायात की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर होने वाले इजाफे से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इंसुलिन के पहले रेट बहुत कम हुआ करते थे। पहले इंसुलिन का रेट था तकरीबन 450 रुपया, फिर यकदम 950 रुपया हो गया, अब 1500 से ऊपर रेट जा रहे हैं। इंसुलिन के क्राइसिस जो हैं वो काफ़ी अरसा से हम भी फेस कर रहे हैं और डायबिटिक पेशेंट्स भी फेस कर रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल इसकी ये है कि मंथली बेसिस पे जो है वो एक वाइल डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं, और अगर हम प्राइसेस की बात करें तो प्राइसेस जो हैं वो 500% से भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर गए हुए हैं। मरीजों ने हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा है कि 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो गया है। अदवायात की कीमतों पर काबू पाया जाए ताकि इंसानी जानों का ज़िया ना हो सके। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी शजरकारी मुहिम तेजी से जारी है। मरकजी चौक शहीदा में मुख्तलिफ खूबसूरत पौधे लगाए गए। रिपोर्ट देखिए मीर उस्मान की। सदर और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के विजन के मुताबिक मीरपुर शहर को साफ़ सुथरा और बैनुल-अक़वामी अहमियत का शहर बनाने के लिए मेरा मीरपुर मेरा फ़ख्र के नाम से शहर को खूबसूरत बनाने का आगाज़ शहर के मरकजी चौक शहीदा से कर दिया गया। यहाँ सैकड़ों किस्म के बड़े दरख्त, मुख्तलिफ अक़साम के फूल और खूबसूरती में इजाफा करने वाले पौधों की शजरकारी की गई। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर मीरपुर, SSP मीरपुर, चेयरमैन ज़िला कौंसल, मेयर, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मीरपुर, सहाफ़ियों, सिविल सोसाइटी और मुख्तलिफ इदारों के नुमाइंदा अफराद ने निजी फाउंडेशन के तावन से फराम करदा पौधे लगाए और इस बात का आदा किया गया कि हम सब इंतजामिया के साथ मिलकर शहर को खूबसूरत और साफ सुथरा बनाएंगे। इंशाल्लाह जो हमारा अज़म है कि हमने मीरपुर को ग्रीन वापस करना है, तो इंशाल्लाह ये ग्रीन होगा। इसमें हम सब
बतौर एक 32 साल बाद एक नया हाउस भी मौजूद है और हमें इसमें क्योंकि काउंसलर्स के होने से ये फ़ायदा भी है कि वार्ड्स में हम अच्छी तरीके से शजरकारी कर सकते हैं। ज़िले इंतज़ामिया के हमरा जुमला इदारों की मुश्तरका काफियों से मीरपुर शहर सरसबद और शादाब होने की तवक्को है। चौक शहीदा और इलामा इकबाल रोड पर दरख्त लगाकर शहर की खूबसूरती में इजाफा किया गया, जबकि शहर के दीगर चौराहों और शारात पर भी इस किस्म के पौधे लगाए जाएंगे। शहर भर के चौराहों और सड़क के दोनों अतराफ दीवारों की भी तज़ीन और आराइश का अमल जारी है। इंतज़ामिया ने कहा है कि शहरियों से इल्तमास है कि वो वाल चाकिंग ना करें। वाल चाकिंग की वजह से शहर की खूबसूरती में कमी होती है। उम्मीद है कि शहरी मीरपुर शहर को सरसबद और साफ सुथरा बनाने में इंतज़ामिया का भरपूर साथ देंगे। कैमरामैन और रिपोर्टिंग टीम के साथ मीर उस्मान, ब्यूरो चीफ, सच टीवी, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर। शुमाली वज़ीरिस्तान में पाक फ़ौज की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप का क़याम। पाक फ़ौज और हिलाल अहमर के ताउन से शुमाली वज़ीरिस्तान के गाँव सैदगई में फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। इसका मकसद अहले इलाका को मुफ्त तिब्बी मुआयने की सहूलियात के साथ साथ बिला मुआवजा अद्वियात फराहम करना था। आज मगरबी हवाएं बलूचिस्तान के दरवाजे पर दस्तक देंगी। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक मगरबी हवाओं का नया सिलसिला आज बलूचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान है, जो मुल्क के बालाई इलाकों को अपनी लपेट में ले सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज रात बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, खित्ता पोटोहार और इस्लामाबाद में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि बलूचिस्तान के जुनूब मगरबी अजला में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश की तवक्को है। PDMA की जानिब से डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत की गई है। PDMA के मुताबिक ईरान में मौजूद ताकतवर मगरबी सिस्टम बलूचिस्तान की जानिब बढ़ रहा है। सूबे भर में बारिश, जालाबारी और बर्फबारी का इम्कान है, जबकि मूसलाधार बारिश के बायस नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। कोशक टॉप, शीलाबाग, तोबा चकजई में बर्फबारी का इम्कान है। PDMA की जानिब से वादी ज़ियारत जाने वाले सयाहों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई है। बन्नू में खुसूसी अफराद के लिए ज़िलई कन्वोकेशन का इनेकाद किया गया। कन्वेंशन में मुनक़िद करने का मकसद स्पेशल अफराद की सलाहियतों को उजागर करना था। रिपोर्ट करेंगे इस हवाले से सलमान खान। हम मजूर अफराद दीगर अफराद की तरह माशरे में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। हुकूमती अदम तवज्जो के बायस ये अफराद माशरे के हकूक से महरूम रहते हैं। तकरीब के शुरुका कहते हैं कि बाहम मजूर अफराद की तादाद ज्यादा है, जबकि नादरा रजिस्ट्रेशन में ना होने के बराबर है। मजूर पैदा हुआ है तो इन सब को भी इस माशरे में हमने जगह देनी है। कैसे देनी है? अब सबको पता है, जैसे एक आम शख्स का, मर्द औरत का उसके माशी, सियासी और समाजी हकूक़ होते हैं, तो माशरे में इन लोगों की भी यही हकूक़ होनी चाहिए। जो मजदूरी के हामिल अफराद है उन पर अगर हम इन्वेस्ट करेंगे, उनको तालीम व हुनर से जो है ना हम आहंग करेंगे, तो वो भी एक माशरे का एक फ़ाल और मुफीद रुकन बन सकते हैं। तकरीब से शुरुका का कहना था कि बाहम मजूर अफराद में सलाहियतों की कोई कमी नहीं। हुकूमत और इंसानी हकूक पर काम करने वाले इदारे की जिम्मेदारी बनती है कि जितने भी महकमे हैं इन बाहम मजूर अफराद का मखसूस कोटा दिया जाए, ताकि माशरे में फलाह व बहबूद के लिए काम कर सके। बाहम मजूर अफराद के लिए कन्वेंशन का मकसद इन स्पेशल अफराद की मजीद सलाहियतों को उजागर करने के लिए हुकूमत से इकदाम करे, जिससे बाहम मजूर अफराद माशरती, सियासी, समाजी व इंतहाबी अमल समेत दीगर अहम सरगर्मियों में हिस्सा ले सके और मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस पाकपतन के एजाज में तकरीब मुनक्कद की गई। SP इन्वेस्टिगेशन का कहना था कि अवाम की जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस पाकपतन हर वक्त तैयार है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद खरल। नंबरदार इत्तेहाद पाकपतन के ज़ेर एहतमाम डिस्ट्रिक्ट पुलिस पाकपतन के एजाज में तकरीब मुनक्कद की गई। तकरीब में पुलिस मुकाबले में डाकुओं को जहन्नम वासिल करने वाले पुलिस अफसर को खराज तहसीन पेश किया गया। तकरीब में SP इन्वेस्टिगेशन पाकपतन शाहिदा नूरीन और पुलिस अफसर के पहुंचने पर फूल की पत्तियां निछावर की गई और पंजाब पुलिस जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। अपना जो है ना जो फर्ज था वो निभाया है हमारा जो पुलिस कांस्टेबल और ड्राइवर और ये हमारा SHO है, ये बहुत काबिले तारीफ है और इनकी जुर्रत को हम सलाम पेश करते हैं। जराइम की बेकनी, मुजरमान की सरकोबी और आवाम के जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस पाकपतन हुमा वक्त तैयार है। शहरियों की जानिब से पुलिस की कारकर्दगी को सराहना पुलिस और आवाम के दरमियान हम अंगी और मोहब्बत की एक जिंदा मिसाल है। कैमरा टीम के साथ नज़ीर अहमद खरल, ब्यूरो चीफ सच TV, पाकपतन शरीफ। फैसलाबाद में रेस्क्यू 1112 ऑफिस में आगाही तकरीब मुनक़िद की गई। तकरीब में रोड सेफ्टी और डोर से बचाव के लिए आगाही दी गई। मज़ीद तफसीलात शकील हबीब की इस रिपोर्ट में।
रेस्क्यू 1112 में रोड सेफ्टी, हेलमेट और डोर से बचाव के लिए आगाही तकरीब मुनक्कद की गई। तकरीब में रेस्क्यू 1112 के जवानों ने भरपूर शिरकत की। इस तकरीब का मकसद बढ़ते हुए हादसात और डोर से बचाव के लिए आगाही देना था। आज का जो ये वर्कशॉप थी वो थी कि हम बाइक को सेफली कैसे राइड कर रहे हैं। मोटरसाइकिल चलाते हुए खुद भी बचना है, दूसरों को भी बचाना है। तो यहाँ पे हमारे ऑफिस में करने का पर्पज़ एक ये भी था, अवेयरनेस। जैसे हमारा स्टाफ जा रहा है वो इमरजेंसी डील करने के लिए, उसे फास्ट मूव करना है, तो वो किस तरह से अपनी सेफ्टी, या सिमुलेटर भी था कि अपनी सेफ्टी को कैसे मद्देनजर रखेंगे, लोगों को कैसे हम बेहतर तौर पे रेस्क्यू किया जा सकता है। दूसरी इम्पॉर्टेंस है हेलमेट की। हेलमेट आपको हेड इंजरी से बचाता है। हेलमेट जो है ना वो कॉस्मेटिक से ज़्यादा ये सेफ्टी की रिक्वायरमेंट है। ज़रूरी है कि जब भी मैं आप हमारे साथी मोटरसाइकिल पे बैठे तो कम से कम वो अपने आप से तो मुखलिस हो ना। अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले ही जो नुकसान में होता है वो तो वही बंदा होता है, फिर उसकी फैमिली होती है और फिर अल्टीमेटली ये सारा मुल्क होता है। आगाही तकरीब में डोर से बचाव के लिए खुसूसी अवेयरनेस भी दी गई, जिसे शहरियों ने भी खूब सराहा। रेस्क्यू 1122 जहाँ पर एकदम एमरजेंसी सर्विस देने में महारत किस्म की खिदमत फराहम कर रहा है, वहीं पर जो है वो मोटरसाइकिल से एहतियाती तदाबीर पर अवेयरनेस भी फराहम कर रहा है। कैमरा टीम के साथ शकील हबीब, सच न्यूज़, फैसलाबाद। तिलागंग में मुफस्सिर कुरान अल्लामा शेख मोहसिन अली नजफी मरहूम की इल्मी खिदमात को खिराज तहसीन पेश करने के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया। शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। मजीद जानते हैं आफ्ताब मलिक की इस रिपोर्ट में। तिलागंग में मदरसतुल हसनैन के ज़ेर तमाम मुफस्सिर कुरान अल्लामा शेख मोहसिन अली नजफी मरहूम की इल्मी खिदमात को खराज अकीदत पेश करने के लिए एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें डॉक्टर नदीम अब्बास, अल्लामा ज़हूर खान, अल्लामा गुलाम वहीउद्दीन, अल्लामा हामिद अली सुनराना, मौलाना नसीर हैदर और दीगर मुकर्ररीन ने मरहूम की शख्सियत, तालीफात, दीनी मदारिस व फलाई इदारों की तरवीज में खिदमात, अहले बैत से इश्क व मोहब्बत और तरवीज आज़ादारी, इस्लामी वहदत और नौजवान नस्ल की तरबियत जैसे मौज़ूआत पर सैर हासिल गुफ्तगू की। जबकि मौलाना सैयद मोहम्मद अली हमदानी ने स्टेज सेक्रेटरी के फ़राइज़ सरअंजाम दिए। डॉक्टर नदीम अब्बास ने मुफस्सिर कुरान अल्लामा शेख मोहसिन अली नजफी मरहूम की इल्मी खिदमात पर रोशनी डालते हुए कहा कि शेख मोहसिन अली नजफी अल्लाह ताला पर यकीन और गरीबों की मदद और दिलजोई करने वाले इंसान थे। जो दस्ते करम रखता था मिल्लत के सरों पर, जो दस्ते करम रखता था मिल्लत के सरों पर, वो काफिला सालार भी मोहसिन नजफी थे। तदरीस में तामीर में तसनीफ कुतुब में, तदरीस में तामीर में तसनीफ कुतुब में एक अज़्म का मीनार भी मोहसिन नजफी थे। सेमिनार में मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने शिरकत की। प्रिंसिपल मदरसतुल हसनैन तिलागंग अल्लामा आशिक हुसैन नकवी ने आने वाले मेहमानों को खुशामदीद कहते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन टीम के साथ आफ्ताब मलिक, सच न्यूज़, तिलागंग। खानेवाल में ज़िले इंतजामिया की जानिब से 3 रोज़ा कुतुब मेले का इनेकाद किया गया। मेले में मुख्तलिफ मौज़ूआत की किताबें तलबा की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई हैं। रिपोर्ट देखिए सलमान फरीद वड़ाइच की। दौरे जदीद में किताब बीनी के फ़रोग के लिए खानेवाल की जना लाइब्रेरी में कुतुब मेला सजाया गया, जिसमें सफ़रनामों, फ़नून लतीफ़ा, तारीख, मालूमात आमा और साइंसी अलूम पर मबनी कुतुब तवज्जो का मरकज़ बनी रही। बहुत इंजॉय कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैं पार्टिसिपेट भी कर रही हूँ, मुझे बहुत इंजॉय मिल रहा है और मैं बहुत खुश हूँ। हम आज जिना लाइब्रेरी में आए हुए हैं और यहाँ पे फंक्शन अरेंज किया गया है बहुत अच्छा लाइब्रेरी के हवाले से, और माशाल्लाह हमें देख के बहुत खुश हो रहा है। हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह। कुतुब मेले में तलबा के साथ साथ उस्ताज़ा ने भी खूब दिलचस्पी ली और मुख्तलिफ किताबों की खरीदारी की। किताब मेले के शुरका का कहना है कि इस तरह की तकरीबात के इनेकाद से कुतुब बीनी की रिवायत को जिंदा रखा जा सकता है। कैमरा टीम के हमरा सलमान फरीद वड़ाइच, सच न्यूज़, खानेवाल। रवां साल की दूसरी कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज 26 फरवरी से होगा। तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हैं। अमले को ज़रूरी तरबियत भी फराहम कर दी गई। मुल्क भर में शुरू होने वाली 7 रोज़ा कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम के लिए तरबियत याफ्ता पोलियो वर्कर्स की टीमें तश्कील दी गई हैं, जो घर घर जाकर 5 साल तक उम्र के 3 करोड़ 80 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएंगी। इस दौरान बच्चों की कुव्वत मुदाफ़त में इजाफे के लिए विटामिन ए के इजाफी खुराक भी दी जाएगी। वजारत सेहत के मुताबिक क़ब्ल पख्तूनख्वा की 33 अजला के अलावा मुल्क भर में ये मुहिम चलाई जाएगी। कराची और हैदराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो वैक्सीन
पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। पंजाब में ये तादाद 2 करोड़ 30 लाख से जायद है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में 26 लाख 55 हजार, जबकि इस्लामाबाद, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में 14 लाख से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। वजारत सेहत के मुताबिक पोलियो ने बच्चों को बहुत नुकसान पहुँचाया है और इसका खात्मा एक कौमी हदफ है। वजारत सेहत की जानिब से वालिदैन से बच्चों को लाजमी तौर पर वैक्सीन पिलाने की हिदायत की गई है। रहीम यार खान के निजी स्कूल में सालाना रिजल्ट की तकरीब मुनक़िद की गई। बच्चों ने मुख्तलिफ टैबलोज पेश करके शुरका से खूब दाद वसूल की। पोजीशन होल्डर्स बच्चों में ट्रॉफियां और सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। रिपोर्ट करेंगे हसन रहमानी। रहीम यार खान के निजी स्कूल की जानिब से सालाना रिजल्ट की शानदार तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें पोजीशन होल्डर बच्चों में इनामात और तारीफी सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। जिस इलाके में स्कूल है वहाँ पे जो पेरेंट्स होते हैं और जो बच्चे होते हैं वो इस तरह की चीज़ों से बहुत ज़्यादा इंकरेज और मोटिवेट होते हैं। और हमारे पूरे रहीम यार खान में जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उन सबको इस तरह कोई ना कोई सेरेमनी अरेंज करते रहना चाहिए। हमारी एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन थी और इसमें हमारी टीचर्स ने भी बहुत मेहनत की, हमारे बच्चों ने बहुत मेहनत की। बच्चों ने स्टेज पर सकाफती परफॉर्मेंस दिखाकर शुरका को अपने शहर में जकड़कर खूब दाद वसूल की। स्कूल में बेस्ट टीचर्स अवार्ड भी तकसीम किए गए। बच्चे खुश भी बहुत है, पार्टिसिपेट करते हैं, लाजमी बात है अपने पेरेंट्स के साथ आते हैं। कभी कभी ये मौका मिलता है उनको कि इस तरह की सरगर्मियां, इस तरह की परफॉर्मेंस करने का, देखने का, तो बस इसलिए बच्चे बहुत ज्यादा खुश हैं। प्रिंसिपल तारिक रशीद ने शुरका से खिताब करते हुए कहा कि प्रोग्राम का मकसद बच्चों में छुपे टैलेंट को बाहर निकाल कर इनकी सलाहियतों में निखार पैदा करना है। कैमरा टीम के साथ हसन रहमानी, सच न्यूज, रहीम यार खान। नए आने वाली हुकूमत से जैकबाबाद की आवाम को अच्छी उम्मीदें भी हैं तो वहीं शिकवा शिकायत भी हैं। मजीद जानते हैं दोस्त मोहम्मद लाशारी की रिपोर्ट में। नई आने वाली हुकूमत से जैकबाबाद की आवाम का मिला जुला रुझान देखने को मिला। कुछ शहरियों का कहना था कि नून लीग और पीपी की हुकूमत में महंगाई बदअमनी पर मुकम्मल कंट्रोल किया जाएगा, जबकि कुछ शहरी मुश्तरका हुकूमत से नाउमीद भी नजर आए। हमारे जो नए हुक्मरान आए हैं ये अल्लाह करे सही तरीके से मुल्क को चलाएं ताकि महंगाई कंट्रोल हो। ये रोज दिहाड़ी वाले जो बंदे ना उसको बहुत तकलीफ। महंगाई बढ़ती जाएगी, पीछे नहीं होगी। देखना यह है कि मुख्तलिफ जमातों के इत्तेहाद से जुड़ने वाली हुकूमत आने वाले दिनों में अवाम की बुनियादी मसाइल के हल के लिए उनकी उम्मीदों पर कितना पूरा उतरती है। कैमरा मैन अयाज सुमरो के साथ दोस्त लाशारी, सच न्यूज, जैकबाबाद। कहते हैं शौक बेमोल होता है। नवाबशाह में एक शहरी ने अपने शौक को ही जरिया माश बना लिया है। जानिए आसिफ रजा आशिक की इस रिपोर्ट में। महंगाई के दौरे परेशानी में जहां इंसान को 2 वक्त की रोटी का हुसूल परेशानी में मुब्तला किए हुए है, तो वहीं नवाबशाह के शहरी ने परिंदे पालने के शौक़ को फ़कत शौक़ तक महदूद नहीं रखा, बल्कि परिंदों और पिंजरों की दुकान खोलकर इस शौक़ को अपना ज़रिया मुआश बना लिया और नवाबशाह के शहरियों को परिंदों के कारोबार से आशना कर दिया। भाईजान पहले मुझे शौक था चीज़ का, परिंदे मैंने पाले थोड़े बहुत, फिर आस्ते आस्ते करके अल्लाह के हुक्म से अब अपना कारोबार करके बैठे भाई। नवाबशाह में परिंदों का कारोबार रोज़ बरोज़ फ़रोग पा रहा है, जो कम सरमायाकारी से शुरू किया जाने वाला नफ़ा बख्श कारोबार है। शौक को सिर्फ शोगल तक महदूद ना रखा जाए, अगर इस पर ज़रा सी तवज्जो दी जाए तो ये हमें नफ़ा बख्श जो है कारोबार भी फराहम कर सकता है। कैमरा टीम कैमरा आसिफ रजा आशिक, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, नवाबशाह। मोटरवे पुलिस ने ईमानदारी की आला मिसाल कायम कर दी। कलर कहार सर्विस एरिया में रह जाने वाला पर्स, जिसमें कुल 8 लाख मालियत के जेवरात और नकदी मौजूद थी, तलाश करके पुलिस ने मालिक के हवाले कर दिए। मोटरवे पुलिस को पर्स रह जाने की इतला हेल्पलाइन के जरिए मिली, जिस पर फौरी एक्शन लेते हुए सर्विस एरिया के करीब तरीन पुलिस मोबाइल ने मालिकान से राब्ते में रहते हुए पर्स की तलाश शुरू की। बाहिफाजत पर्स मिलने पर मुताल्लिका फैमिली ने मोटरवे पुलिस का शुक्रिया अदा किया। कहरोड़ पक्का में खड्डी से तैयार होने वाले कालीन बनावट के लिहाज से मुल्क भर में मशहूर हैं। हाथ से बनाए गए मुनफरिद कालीनों को मुल्क के बड़े बड़े शहरों से लोग खरीदने के लिए आते हैं। रिपोर्ट करेंगे समीरा। दौरे जदीद में जहां हर चीज़ मशीनरी की मदद से बनाई जा रही है, वहीं पर किरोड़ पक्का में आज भी सदियों पुराने तर्ज पे खड्डी से कालीन तैयार की जाती हैं। कालीन बनाने वक्त 5 खवातीन बैक वक्त काम करती हैं। कालीन बनावट और क्वालिटी की वजह से पंजाब भर में अपना नाम और पहचान रखती हैं। अंदरूनी शहर के साथ साथ मुल्क के बड़े बड़े शहरों से लोग आर्डर पे कालीन तैयार करवाते हैं। ये कालीन मस्जिदें, घरों में आम इस्तेमाल होती हैं। किरोड़ पक्के दे विच असा कालीन दा काम करने, लकड़ दा अड्डा है, धागे नाल हाथ नाल बने ने, 5-6 बंदे बानन 8-9 फुट दी होंदी असा उसको तैयार करने, बाहर मुल्क वेंदी। यूं तो मुल्क भर में फर्श पर बिछने वाली खूबसूरत कालीनें तैयार की जाती होंगी, मगर जो बात और बनावट और खूबसूरती किरोड़ पक्का में खड्डी से बनाने वाले कालीनों की होती है, वो इसकी मिसाल शायद ही कहीं और मिलती हो। कैमरामैन टीम के साथ समीराव, किरोड़ पक्का।
बरसगीर के अजीम रूहानी पेशवा हजरत बाबा पीर शाह गाजी के उर्स की तकरीबात का आगाज हो गया। अकीदतमंदों ने कसीर तादाद में शिरकत की। मोहम्मद सगीर की रिपोर्ट। बरसगीर के अजीम रूहानी पेशवा हजरत बाबा पीर शाह गाजी अल मारूफ दमरिया वाले सरकार के सालाना उर्स की 2 रोजा तकरीबात का आगाज हो गया। उसके मौका पर दरबार आलिया को गुस्ल देने की तकरीब खड़ी शरीफ दरबार बाबा पीर शाह गाजी अल मारूफ दमरिया वाली सरकार के आस्थाने पर मुनक्कद हुई। बड़ी इमाम के सजादा नशीन राजा सरफराज, कमिश्नर चौधरी शौकत अली, डिप्टी कमिश्नर यासर रियाज, SSP कमरान अली, महकमा औकाफ के अफसरान समेत दिगर अफराद ने दरबार को अर्क गुलाब से गुस्ल दिया और चादर पोशी की। बादशाह नात ख्वाज रात ने रूमी कश्मीर हजरत मियां मोहम्मद बख्श का कलाम पेश करके तकरीब को 4 चांद लगा दिए। उसकी 2 रोजा तकरीबात 25 फरवरी तक जारी रहेंगी, जिसमें उलमाए कराम खिताब करेंगे और नात खान मियां मोहम्मद बख्श का अरफाना कलाम पेश करेंगे। उसके मौका पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पुलिस की नफरी टोलियों में मौजूद है और गश्त भी कर रही है। मोहम्मद सगीर, सच TV, मीरपुर, आजाद कश्मीर। सानेह द्यामिर हुडोर को 3 माह गुजर गए मगर अभी तक मुल्जिमान की गिरफ्तारी में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। सेक्रेटरी दाखिला का कहना है कि मुल्जिमान की शिनाख्त हो चुकी है, बहुत जल्द ही गिरफ्तार कर लेंगे। इसी पर रिपोर्ट करेंगे गिलगित से वजाहत अली। द्यामर में 2 दिसंबर 2023 को नामालूम दहशतगर्दों की बस पर फायरिंग से सिक्योरिटी एहलकारों समेत 12 शहरी शहीद हुए थे, जिसके बाद हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन का ऐलान किया था, मगर तकरीबन 3 माह हो गए, अभी तक इस ऑपरेशन का कुछ अता पता नहीं है। हुडर में जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है उसमें हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है स्टेट ऑफ द आर्ट तरीके से जियो फेंसिंग करके वो तफ्तीश कर रहे हैं। इसमें कुछ लोग आइडेंटिफाई हुए हैं। इस हवाले से सेक्रेटरी दाखिला गिलगित बल्तिस्तान अली असगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम इस केस की तहकीकात कर रही है और बहुत सारे शवाहिद इकट्ठे कर चुके हैं। बहुत जल्द मुल्जिमान कानून के कटहरे में होंगे, जबकि शारा कराकुरम के सिक्योरिटी और आला हुक्काम को थ्रेट्स के हवाले से कहना है कि सिक्योरिटी सख्त कर दी गई और किसी को कानून अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देंगे। वजाहत अली, सच न्यूज़, गिलगित। रिवायात किसी भी इलाके की पहचान होती हैं। हसन अब्दाल में मिट्टी के बर्तन में तैयार होने वाला रिवायती कटवा गोश्त कई दहाइयों से बनता चला आ रहा है। अब्दुल सपूर की रिपोर्ट। कुछ इलाकों के लिबास और खाने इस इलाके की रवायत और पहचान बन जाते हैं। हसन अब्दाल और गिरदोनवा में शादी ब्याह और दीगर तकरीबात पर बनाए जाने वाला कटवा गोश्त भी रिवायती डिश की शक्ल इख्तियार कर गया है। कटवा गोश्त में भैंस या बैल के गोश्त को मिट्टी के बर्तन में लकड़ियों की तेज आग पे 5 से 6 घंटे पकाकर तैयार किया जाता है, जिसे मकामी लोग मिट्टी के बर्तन में चूरी बनाकर कचूमर, सलाद और दही डालकर खाते हैं। ये कटवा डिश कई दहाइयों से बनती चली आ रही है। मिट्टी के बर्तन से उठने वाली कटवा गोश्त की खुशबू इसके खाने वालों को दूर से खींच ले आती है। कटवा गोश्त को मुकामी अफराद के अलावा शहरी लोग भी बहुत पसंद करते हैं। कैमरा टीम के साथ अब्दुल सबूर, सच न्यूज़, हसन अब्दाल। बहावलपुर के सराय चोलिस्तान में जारी 19वीं चोलिस्तान जीप रैली का आज आखिरी रोज है। प्रिपेयर्ड कैटेगरी का आज दूसरा और फाइनल राउंड है, जिसमें 37 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। मजीद जानते हैं बहावलपुर से अपने नुमाइंदा जुबैर शेख से। नवाबों के शहर बहावलपुर के सहरा चोलिस्तान में सजने वाला मेला 19वीं चोलिस्तान जीप रैली का आज आखिरी रोज है। आज प्रीपेड कैटेगरी की गाड़ियों का दूसरा और फाइनल राउंड है। प्रीपेड कैटेगरी की गाड़ियां आज 231 किलोमीटर का ट्रैक तय करेंगी, जिसमें 37 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। चोलिस्तान के ऊंचे नीचे टीलों और खतरनाक मोड़ रेसर्स के लिए काफी चैलेंजेस का हामिल रखती हैं, लेकिन इसके बावजूद रेसर्स अपनी जीत के लिए पुरअज़म दिखाई देते हैं। काफी एक्साइटेड। मेरी नेविगेटर भी फीमेल है और हम सेकंड फीमेल डुओ और यंगेस्ट रैली ड्राइवर्स हैं हम लोग। और ट्रैक की बात करें तो ट्रैक थोड़ा खराब हो चुका है, थोड़ा टफ हो चुका है, तो सही स्किल्स टेस्ट होंगी हम सबकी, चाहे फिर मेल हो या फीमेल, दोनों की। जो ट्रैक की मकबूलियत है और जो चोलिस्तान की मकबूलियत है, आप देख रहे हैं वो दुनिया में किस तरह बढ़ रही है। मैं समझता हूँ कि ये इवेंट
जो है वो इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम और भी रोशन करेगा। प्रीपेड कैटेगरी के पहले राउंड में जैन महमूद ने 231 किलोमीटर का ट्रैक 1 घंटा 51 मिनट और 10 सेकंड में तय करके कामयाबी अपने नाम कर ली, जबकि साबका दिफाई चैंपियन नादिर मक्सी भी करीब करीब रहे। आज प्रीपेड कैटेगरी के फाइनल राउंड में जीत का सहरा किसके सर जाता है, इसका ऐलान शाम को होगा। कैमरामैन टीम के साथ जुबैर शेख, सच न्यूज, बहावलपुर। खैरपुर के रिवायती मूड़े खूबसूरती और नफासत में अपना कोई सानी नहीं रखते। मूड़े हर देखने वाले को अपना गरीदा बना लेते हैं। रिपोर्ट देखिए अली गौहर की। खैरपुर शाह हुसैन बाईपास पर मुनफरद अंदाज में आज भी हाथ से तैयार किए जाने वाले मूड़े और मूड़ियां अपनी खूबसूरती और बनावट के लिहाज से अपनी मिसाल आप हैं। एक मूड़े को तैयार करने में 4 से 5 दिन लग जाते हैं। मूड़ियां हो, मूड़े हो, टेबलें हो, जो भी हो हम बनाते हैं। ये पूरी सिंध, पूरे पाकिस्तान में जाते हैं। शौकिया बंदे आते हैं यहाँ से लेने के लिए। काना परे का खणी ना पैसा ना वठी ना हिकिड़ो मूड़ो असां हिकिड़ो ॾींहुं बि खाई वेंदो आहे। हुकूमती इदारे अगर इनके कारोबार पर थोड़ी सी तवज्जो दें तो ये खूबसूरत मूड़े और मूड़ियाँ मुल्क की अहम पहचान बनने के साथ साथ कई अफराद के रोजगार का जरिया बन सकते हैं। कैमरा टीम के साथ अलीगढ़ गोपाल, सच न्यूज, खैरपुर। फैजगंज में देसी गुड़ बनाने का अमल जारी है। गुड़ लज्जत और जायके के एतबार से अपनी मिसाल आप है। खस्तापन की वजह से गुड़ बच्चों और बड़ों में यकसां तौर पर मकबूल है। रिपोर्ट करेंगे काजिम चांग। सिंध में जहाँ गुड़ बनाने की रवायत कम पड़ गई, वहाँ फैजगंज के शहर पकाजंग में गुड़ बनाने की रवायत आज भी बरकरार है। पकाजंग में गुड़ बनाने के लिए आज के जदीद दौर में भी पुराने रवायती तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। गन्ने के रस को मीठे खुशबूदार गुड़ में ढलने के लिए कई मराइल से गुजरना होता है। गन्ने को काटने और छीलने के बाद उन्हें बेलने में डालकर रस निकाला जाता है, जिसे साफ करके तपती भट्टी में घंटों पकाया जाता है। गुड़ में रवायती रंगत लाने के लिए खाने के सोडे का इस्तेमाल किया जाता है। गुड़ बना रहे हैं, ये हम अपने की सकावत के लिए बना रहे हैं। मिलों पे इन कमान का रेट बहुत है, इसी वजह से हमें बचत नहीं है। फसल पर साल भर मेहनत की जाती है तो गुड़ बनाना भी इंतहाई मेहनत तलब है। फिर भी पूरा सिला ना मिले तो धरती से जुड़े मेहनत कशों का दिल टूटने लगता है। कैमरामैन मशद रजा के साथ काजिम चांग, सच न्यूज, फैजगंज। रेहरकी के लजीज पेड़े जायके में अपना कोई सानी नहीं रखते। लजीज पेड़े बैरून मुल्क भी तहाइफ के तौर पर भेजे जाते हैं। अब्दुल गफूर की रिपोर्ट। खालिस दूध और खोए में चीनी मिलाकर इसे मुख्तलिफ मराइल से गुजार कर लजीज पेड़ों की शक्ल दी जाती है और ये पेड़े बन जाते हैं। ढेरकी की खास सौगात, ये पेड़े न सिर्फ मुल्क बल्कि बैरून मुल्क में भी मशहूर हैं। खुशी का त्यौहार हो या आम दिनों में तोहफे के तौर पर पेश किए जाते हैं। पेड़ों की तैयारी के दौरान खालिस दूध के साथ साथ पिस्ता, बादाम भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि ये पेड़े जायके में अपना कोई सानी नहीं रखते। हमारे ढेरकी के पेड़े बहुत मशहूर हैं, बहुत दूर जाते हैं। स्पेशल दूध मावे के स्पेशल तैयार करते हैं, हम आर्डर पर भी तैयार करते हैं और पाकिस्तान में भी बहुत बड़े बड़े शहरों में जाते हैं और बैरून मुल्क भी जाते हैं। बढ़ती हुई महंगाई की वजह से यूं तो हर चीज की मयार में तब्दीली की गई है, लेकिन पेड़ों की मयार आज भी बरसों पहले की तरह बहुत आला और मकबूलियत में भी इजाफा बढ़ता जा रहा है। कैमरामैन मोहम्मद मुजतबा के साथ अब्दुल गफूर, सच न्यूज, ढेरकी। सच का पाकिस्तान से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच न्यूज।